Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. So in today's video I am going to guide you about the complete application process of a fully funded scholarship that is offered by the Central European University. Central European University is located in Hungary and it has opened its applications for bachelor's, master's and PhD degree programs, and this university provides fully funded scholarships to the international applicants. And for this scholarship you don't have to pay any application fee, and you don't have to have an IELTS score. So you can apply without paying any application fee, and you can also apply without IELTS or TOEFL. If we talk about the university, the name of university is Central European University. Degree levels that are offered are bachelor's, master's and PhD. Scholarship is fully funded, and students from all nationalities are eligible for this scholarship. If we talk about the deadline, so the deadline for the scholarship is February 1, 2024. Now let's talk about the financial benefits. So up to 100% tuition fee waiver is given to postgraduate students. A health insurance is also provided by this scholarship, and you will also be given a monthly stipend. If you get a master's excellence scholarship, you will be paid €1,000 per month. If you get a master's distinction scholarship, you will get €750 per month, and in master's scholarship you will get €500 per month. If you are a PhD student, then you will get €1,350 per month, and two presidential awards with a total value of €5,000 each, covering tuition fees throughout 4 years, are provided to undergraduate students. If we talk about the study fields, they offer a wide range of programs. If we talk about the departments, we have political science department, network and data science, mathematics, international relation, environmental science, policy, history, legal study, philosophy and many more. And the documents that are required for the scholarships are CV and recommendation letters, research proposals but only for graduate programs, a statement of purpose and proof of English language proficiency. If you don't have IELTS, you can submit your English language proficiency certificate that you can get from your university. If we talk about the eligibility criteria, so if you're applying for undergraduate degree, you should have a high school certificate for bachelor's. If you're applying for master's, you should have undergraduate degree and transcript. If you're applying for doctoral programs, you should have a master's degree. So now we will start our application process, and for that we will come onto the website of the university, and from here we will click on the apply button. After clicking on the apply button, here you will see the list of requirements. So you will have to submit your academic writing, and then you will have to submit letters of recommendations, academic records, CV, proof of English language proficiency, and some programs also require GRE and GMAT tests, but these are from for the Department of Economics and Business specifically. So now we'll start our application process. So we will click on start your CEU online application button. And here, since we are new users, we don't have an account, so we will click on the new user button and we will register our account first. Here you will enter your information. First you will write your first name, and then you will write your last name. Then here you will write your date of birth, citizenship, and then you will write your email address and password. And then you will click on the create user button. So you will be registered on this website. सो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन अपेयर होगी। यहाँ पे आपके पास जो है अभी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप मास्टर्स चूज़ करोगे, और मास्टर्स चूज़ करने के बाद फिर आप नीचे एकेडमिक ईयर में चूज़ करोगे 2024 टू 2025। यहाँ पे फिर आपने जो है अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना है।
डिपार्टमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है चूज़ करते हैं जेंडर स्टडीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। जेंडर स्टडीज़ चूज़ करने के बाद आपने यहाँ मोड ऑफ़ स्टडी में जो है फुल टाइम चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ से हम जो है सर्च नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़िल्टर्स के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं यहाँ। और अभी हमारे पास जेंडर्स स्टडीज़ के ये कोर्सेज़ जो है वो अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एमए इन जेंडर स्टडीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इस स्क्रीन पे। यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस नंबर लिखा है, फिर ईयर लिखा है, पीरियड लिखा है, मोड ऑफ अटेंडेंस, स्टार्ट डेट, फिर यहाँ पे अप्लाई है। तो यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये सारी जो है डिटेल्स आपने फिल करनी है वन बाय वन। यहाँ पे जो है ऑल फील्ड्स आर कंप्लीट। जब फील्ड्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ग्रीन टिक आएगा, और जब आपने जो है फील्ड कंप्लीट नहीं किए होंगे तो रेड टिक आएगा। तो आपने यहाँ पे जो है पहले स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना सारा डिटेल जो है वो फिल कर लेना है वन बाय वन। सबसे पहले आपसे पूछा गया है आपके पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टाइटल चूज़ करोगे। इफ़ यू आर अ गाय चूज़ मिस्टर, इफ़ यू आर फीमेल देन यू चूज़ मिस। फिर यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल करना है। नीचे आपने अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। जेंडर चूज़ करने के बाद जो है नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। फिर उसके बाद जो है आपने अपनी कंट्री ऑफ बर्थ, वो कंट्री जहाँ पे आप पैदा हुए थे। फिर सिटी ऑफ बर्थ, द सिटी वेयर यू वर बॉर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है इस्लामाबाद लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे आपने जो है अपना सिटीज़नशिप चूज़ करना है, जिस कंट्री का आपके पास सिटीज़नशिप है। अगर आपके पास डुअल सिटीज़नशिप है तो यहाँ पे आप जो है वो भी चूज़ कर सकते हो। फिर कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, तो परमानेंटली आप जहाँ पे रह रहे हो आपने यहाँ पे जो है वो चूज़ करना है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो पाकिस्तान कर लो, इंडिया में रह रहे हो, बांग्लादेश में रह रहे हो, अफ्रीका में रह रहे हो, जहाँ भी आप रह रहे हो वो चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमारे पास यूरोपियन कोई जो है परमानेंट रेजिडेंट परमिट है। तो अगर आपके पास है तो येस कर लो, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप नो चूज़ कर लो। फिर आपने यहाँ से जो है सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद हमारी पर्सनल डिटेल जो है वो कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास जो है ग्रीन टिक मार्क आ गया है। फिर यहाँ पे आपने जो है अपना कॉन्टैक्ट्स की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है, फिर सिटी का नेम लिखना है, फिर आपने पोस्ट कोड लिखना है, प्रोविंस ऊपर लिख लेना है। देन नीचे जो है आपने अपना नंबर लिख लेना है। नंबर आपने जो है अपना कंट्री कोड के साथ लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो तो आपने +92 लिख लेना है। फिर आपने नीचे जो ईमेल दिया होगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ईमेल लिखने के बाद आप जो है अपना सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे आपने जो है अपने क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल लिखनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है अपने बैचलर्स की सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लोगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर जो है आप यहाँ पे अपने मास्टर्स प्रोग्राम की जो है वो डिटेल लिख लोगे। और फिर नीचे जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे सबसे पहले कंट्री चूज़ करोगे जिस कंट्री से आपने बैचलर्स किया है। फिर यहाँ पे आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री ली है। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन में बैचलर्स चूज़ कर लोगे। बैचलर्स चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे, जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना बैचलर्स किया है। उसके बाद जो है अगर आपके पास कोई थीसिस है तो यहाँ पे आप उसका टाइटल लिख लोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका बैचलर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर हो चुका है तो येस कर लो, अगर नहीं हुआ तो आप जो है नो कर लो। हम यहाँ पे येस चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट लिखना है, जिस डेट को आपकी डिग्री स्टार्ट हुई। और यहाँ पे आपने एंड डेट लिखना है, जिस डेट को आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो गई थी। फिर नीचे आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन की डेट लिखनी है, जिस डेट को भी आपने ग्रेजुएट किया। और यहाँ पे ऑफिशियल ड्यूरेशन आप लिख लोगे। अगर आपने बैचलर्स किया है तो यहाँ पे आप 4 लिख लोगे, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसकी ड्यूरेशन लिख लोगे।
फिर यहाँ पे आपने जो है अपना बैचलर्स की डिग्री अपलोड करनी है और यहाँ पे आपने अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर लेनी है। वो करने के बाद अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपने पहले बैचलर्स की डिटेल डालनी है। फिर यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करके आप अपने मास्टर्स की डिटेल डाल लोगे। और अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपने जस्ट बैचलर्स की डिटेल डालनी है। और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपने हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। हाई स्कूल मींस कि आपने इंटरमीडिएट की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख लेनी है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एग्जाम्शन फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी, तो अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हो तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर लो। तो आप जो है इस पर क्लिक करके देख लोगे कि किन स्टूडेंट्स को इसकी एग्जाम्शंस जो है वो मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आ जाते हैं। यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश बाय सबमिटिंग योर रिजल्ट्स। You may request an exemption from this requirement by answering the questions about English language qualification. या तो आपकी जो है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, या आप जो है CU के स्टूडेंट होने चाहिए, या आपकी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री जो है वो इंग्लिश में पढ़ाई गई होनी चाहिए। तो हमारी जो है बैचलर्स और मास्टर्स जो है वो इंग्लिश में पढ़ाई गई है, तो हम जो है उसके लिए एग्जाम्प्ट हैं। तो यहाँ पे हम येस पे क्लिक कर लेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे, जो कि आपका है एक्सपीरियंस का। सबसे पहले तो आपने जो है अपना CV यहाँ पे अपलोड कर लेना है। CV अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे और CV यहाँ पे अपलोड कर दोगे। फिर अगर आप करंटली एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे आप जो है यस चूज़ कर लोगे, और अगर आप करंटली एम्प्लॉयड नहीं है तो यहाँ पे आप नो चूज़ कर लोगे। यस चूज़ करने के बाद जो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल्स आ जाएगी, तो वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे जहाँ पे भी आप करंटली जॉब कर रहे हो। फिर आपसे पूछा गया है कि प्रीवियस रोल के बारे में, अगर आप जो है कोई जॉब वगैरह कर चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक कर लोगे और फिर उसकी डिटेल सारी डाल लोगे। अगर आपके पास नहीं है तो फिर नो क्लिक कर लो। वो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जो है सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाना है, जो कि आपका है राइटिंग रिक्वायरमेंट्स का। तो यहाँ पे आपसे जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा गया है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 350 वर्ड्स का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करोगे। अब यहाँ पे आपने जो है अपने दो रेफरीज़ की डिटेल डालनी है। रेफरीज़ की डिटेल में जो है आप अपने सुपरवाइज़र या प्रोफेसर्स की डिटेल डाल सकते हो। उनको जो है वो लिंक रिसीव हो जाएगा और वो वहाँ से फिर आपका ये रेफरेंस लेटर जो है वो सबमिट कर लेंगे। फिर आपने यहाँ से जो है सेव एंड कंटिन्यू भी प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाना है, जो कि आपका है फंडिंग का। अब फंडिंग में जो है आपसे पूछा गया है कि आप जो है फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चूँकि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे येस पे क्लिक कर लेंगे। वो क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे सबमिशन के सेक्शन पे। सारी डिटेल यहाँ पे फिल करने के बाद जब आपके पास ग्रीन मार्क्स आ जाएंगे तो फिर आप यहाँ से जो है वो अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट कर लोगे। उससे पहले आप यहाँ पे इनमें से कुछ भी ऑप्शंस चूज़ कर लो रैंडमली, जो भी आप चूज़ करना चाहो। फिर यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हमसे कमेंट में पूछेगा, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा चैनल जो है फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप्स की वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।